Good afternoon to all. Welcome, ma'am, for today's communication session. I would like to introduce Madhura, ma'am. Madhura Padwadekar, ma'am, is a former head of Department of Medical and Social Work, Cipla Palliative Care and Training Center. She has worked as a counselor and psychiatric social worker from 1998 to 2008, spanning over the organizations, the Family Welfare Agency, Mumbai, Mumbai, and Schizophrenia Awareness Association, Pune. She has conducted workshops for professional and coordinated with municipal hospitals, psychiatrists, and other mental health organizations, police and women's cell in Mumbai. Co-author of the article Stress Among Caregivers, the Impact of Nursing a Relative with Cancer, part of the task force on standard of quality of care in palliative care services, authored the book Two into the World of Psychology, participated and presented papers in many international conferences and in journals on palliative medicine. In the past, she has been a council member of West Zone of Indian Association of Palliative Care and members of Association of Palliative Care Social Workers UK. She's a member of Social Work Hospice and Palliative Care Network also. I'll once again welcome Madhura ma'am for the session. Over to you, ma'am. Thank you. Okay, this is going to be in Hindi again, right? Yes, ma'am. Okay. Yeah. So, can I share my screen? Yes, ma'am, you can. Yeah. Okay. I have what, 1 hour, right? Yes, ma'am. Till 2:30 we need to wind up. We need to wind up by 2:30. Okay. हाँ, जैसे उन्होंने बताया, मेरा नाम मधुरा है, मैं पूना से हूँ और कम्युनिकेशन पे आज और मंडे को बात करूंगी। आज बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन देखेंगे हम। आप लोग सब नर्सेस है, राइट? तो कौन कौन से सेटिंग्स में काम करते हैं मुझे बताएंगे, थोड़ा मुझे आपके बारे में जानना है। Yes, ma'am. This is a group of nurses, 10 nurses from DMH Pune Oncology Department. From which state? DMH Pune. Okay. Okay. 10 people. Yes, 10 nurses. Okay. Okay, then that can be okay. So, okay, let me start. कम्युनिकेशन किस तरह का होता है? मतलब हम लोग जब बात करते हैं तो कम्युनिकेशन करते हैं, क्या करते हैं, कैसे कम्युनिकेशन मतलब क्या लगता है आपको, क्या है? आपको इंटरेक्ट करना है मेरे साथ। आप बताइए कम्युनिकेशन किस तरह का होता है? जो पिक्चर्स आप देख रहे हैं उसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है, कैसे बातें हो रही हैं? वर्बल कम्युनिकेशन, हाँ, एक्सचेंज कम्युनिकेशन। Sister Sheetal, your video is not visible. We can't see participants there. स्क्रीन पे डिपेंड चालू है क्या आपकी स्क्रीन? चालू है ना? हेलो, चालू है कवर? हो रहेगा। हेलो, Yes. 3 people in hall, ma'am. Other one is on phone. We can't see them. Can you on your if your video is on, but we are not able to see them. Technical problem. हाँ, तो मुझे बताइए, जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है उसमें किस तरह की बातचीत हो रही है, किस किस में हो रही है, क्या हो रहा है? मैम, उसमें वर्बल कम्युनिकेशन है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, चैटिंग है हाँ, और ग्रुप कम्युनिकेशन है। हाँ, और अलग प्रकार के लोग दिख रहे हैं कि सेम है? डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल है। हाँ, सो कम्युनिकेशन, नेचर ऑफ कम्युनिकेशन बातें करना और कम्युनिकेट करना, जनरल बातें और कम्युनिकेशन विद अ स्पेसिफिक पर्पस, ये दो अलग चीजें हैं। तो हम लोग प्रोफेशनली और नॉन प्रोफेशनली भी
दो तरह की बातें करते हैं। एक तो मतलब अगर हम प्रोफेशनली करेंगे तो थेरेप्यूटिक है, विद एन इंटेंशन की कुछ प्रॉब्लम है, कुछ इश्यू है और उसके बारे में हम उनके साथ बात करने जा रहे हैं, पेशेंट के साथ या फैमिली के साथ। नॉन थेरेप्यूटिक जो हम आते जाते टाइम हम लोग को दिखेंगे पेशेंट्स या रिलेटिव्स, उनके साथ जो बात करते हैं, जनरल टॉक, ओके। फॉर्मल नॉन फॉर्मल रहता है। टेलीकम्युनिकेशन, आजकल टेलीकम्युनिकेशन का भी बहुत it is one way in which you are able to communicate with people, diagnose people, help them with other with the issues, मतलब काउंसलिंग भी कर सकते हैं। एंड कम्युनिकेशन इज वन वे या टू वे, राइट। जो फोर्थ पिक्चर दिख रहा है, मतलब राइट पे जो नीचे पिक्चर दिख रहा है, इट इज वन वे कम्युनिकेशन। एक आदमी है जो बहुत सारे लोगों के साथ बात कर रहा है ना। सो वी हैव डिफरेंट मीडियम्स, डिफरेंट वेज इन विच वी कैन कम्युनिकेट विथ पीपल, ठीक है ना। ओके, तो जब आपने अभी पैलिएटिव का जो कोर्स आप ले रहे हैं, उसमें आपने इनिशियल जो लेक्चर्स हुए हैं उसमें आपने देखा होगा कि पैलिएटिव केयर में यू हैव टू, मतलब इन जनरल आल्सो यू हैव टू ट्रीट द पेशेंट एज अ पर्सन। मतलब क्या कि एक आदमी अगर मतलब ठीक है और अचानक से बीमार पड़ जाता है, तो जनरली क्या हो जाता है कि हाँ, उसके सब पावर्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी सब रॉब हो जाते हैं। उसको एक ऐसी पोजीशन में वो जाता है जहाँ पे वो डॉक्टर्स का उसको डॉक्टर्स के का सुनना है, रिलेटिव्स का सुनना है, जो भी आए वो उनको सलाह देगा और उनके साथ उनको बताएगा क्या करना है। तो ये न करते हुए हमको ये सोचना है कि पेशेंट जो है वो एक पहले ह्यूमन बीइंग है, तो उसको फीलिंग्स है, इमोशंस है और इसके वजह से उसको भी कुछ से होगा, उसके ट्रीटमेंट के बारे में, उसकी स्थिति के बारे में उसको कुछ तो लग रहा होगा और उसको वो कहने को का चांस हमको देना है। सो कम्युनिकेशन करने के लिए पहली क्या जरूरत है, यू हैव टू ट्रीट हिम एज अ पर्सन विद द इलनेस। हाँ, ये थोड़ा डिफरेंशिएट करना है कि डिसीज्ड बॉडी वर्सेस पर्सन विथ इलनेस, ओके। डिसीज बॉडी बोलेंगे तो सिर्फ हमको इलनेस का के ऊपर हमारा ध्यान जाता है। डिसीज कौन से ऑर्गन पे है, उसका क्या करना है, इसके बारे में हम विचार करते हैं। पर हमको ये न सोचते हुए ये भी सोचना है कि उसका वो पर्सन है और उसको हमको रिस्पेक्ट देना है, डिग्निटी देना है। तो क्या है, ये एकदम मैं बेसिक बेसिक चीजें बताने वाली हूँ जो हम लोग को ध्यान में रखना है कि क्या हम जब प्रेजेंट करते हैं अपने आप को रिलेटिव्स और पेशेंट्स के सामने, तो कैसे हमको होना है। इंटरेस्ट दिखाना है उनमें कि और एक पेशेंट आया और एक बेड भर गया, इस हिसाब से न सोचते हुए कि एक आदमी है, उसके बारे में हमको सोचना है। कंसर्न दिखाना है कि वो पेन में है या कुछ दुखी लग रहा है, तो एक्नॉलेजिंग कि हाँ, आपको कुछ तकलीफ है, हम आपके तकलीफ कम करने में आपकी मदद करेंगे। रिस्पेक्ट दिखाना है, बूढ़ा हो या छोटा बच्चा हो, कोई भी हो, रिस्पेक्ट फ्रॉम एनी क्लास, एनी कास्ट, कोई भी हो, उसको रिस्पेक्ट से ही हमको बात करना है। वो कॉम्प्रोमाइज पोजीशन में है, इसके लिए हमको उनके तरफ का हमारा अप्रोच बदलना नहीं है। नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह ही उनके साथ रिस्पेक्ट देना है। दे में बी क्रैंकी या बहुत चिड़चिड़े हैं या बहुत तकलीफ देते हैं हमको, फिर भी रिस्पेक्ट, कंसर्न, इंटरेस्ट सब दिखाना है उनको। एम्पथाइज करना है, दे नीड टू नो कि उनको जो हो रहा है उसका हमको समझ में आ रहा है कि उनको क्या हो रहा है। जस्ट सिंपैथी दिखा के नहीं कि अरे बाबा इसको क्या हो गया, इससे ज्यादा है कि आप उनको बताएं, उनको ये एहसास दिलाए कि हाँ, हमें समझ में आ रहा है आपको क्या तकलीफ है और हम आपकी तकलीफ कम करने में मदद करेंगे आपकी, ओके। गिव ऑटोनॉमी, तो उनको क्या चाहिए ये पूछना है। हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते ये अलग बात है, पर उनको ऑटोनॉमी देना है। एंड बी अटेंटिव, जो मैं बाद में भी दिखाने वाली हूँ कि हम जब बात करते हैं उनके साथ, तो सिर्फ उनके साथ ही बात करना है। हमारे कलीग्स के साथ वार्ड में क्या हो रहा है, ये सब का सब पे अटेंशन डिवाइडेड न होते हुए
ओनली ऑन दैट पर्सन, सो ही फील्स कि मैं इम्पोर्टेंट हूँ और मेरा वो सुन रहे हैं, ठीक है ना। तो अभी कम्युनिकेशन प्रोसेस में हमको मालूम है, जैसे अभी भी है कि मैं बात कर रही हूँ और आप मैं सेंडर हूँ और आप रिसीवर हैं, है कि नहीं। तो दो लोग हैं, दो पार्टीज हैं, और पर उसमें दो और चीजें होती है। एक तो मीडियम, किस मीडियम के द्वारा मैं आपसे बात कर रही हूँ, या आप क्या यूज करेंगे, हाउ यू आर गोइंग टू टॉक टू देम। और सेकंड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज फीडबैक या रिस्पॉन्स। मतलब क्या, कि जो मैं कहना चाह रही हूँ वो आपको उसी तरह से समझ में आ रहा है जिस तरह से मुझे आपको समझाना है। ये नहीं है कि मैं एक तरह का सोच रही हूँ कि आपको बताऊं और आप ट्रैक बी पे हो। तो ये है, आप भी सेम ट्रैक पे हैं। ये समझने के लिए मुझे क्या करना है, मुझे आपको पूछना है कि आपको समझाना, क्या समझा, आपका रिस्पॉन्स जो आएगा उस हिसाब से मुझे समझेगा कि मैं जो बात कर रही हूँ वो आप तक पहुंच रही है कि नहीं है। और अगर नहीं रही है तो मुझे मेरा मेरा स्टाइल, मेरा अप्रोच चेंज करना पड़ेगा। ओके, सो लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या क्या है, किन किन लोगों के साथ आप बात करते हैं, आप मुझे बताइए प्रोफेशनल रिलेशनशिप में। कौन बताएगा मुझे? मराठीत बोलला तरी चालेल, मला मराठी कळतं. मैम कंसल्टेंट से भी बात करते हैं, रिलेटिव, रिलेटिव के साथ, पेशेंट के साथ, और डॉक्टर के साथ राउंड के टाइम पे, हाँ, और कलीग्स के साथ। हाँ, बराबर। सो ये क्या हो गया, हैंग हो गया। हाँ, राइट। सो पेशेंट्स के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ, अदर प्रोफेशनल्स में आपके सीनियर्स आएंगे, जूनियर्स आएंगे, और आपके कलीग्स भी आएंगे। तो इन सब लोगों के साथ आप बात करेंगे अलग अलग लेवल पे, अलग अलग मोड, इन डिफरेंट मोड्स। ओके, अभी फेजेस क्या है कम्युनिकेशन के। पहले है ओरिएंटेशन। तो जब पेशेंट आपके पास आता है तो आपको सिर्फ उसको पहचान, मतलब समझना है कि पेशेंट क्या है, उसके कंसर्न्स क्या है, नीड्स क्या है, आपका रोल क्या है, आप क्या उनको, उनके साथ आपका जो 4 दिन 5 दिन या 10 दिन वो आपके साथ रहेंगे, उसमें आप क्या हेल्प करने वाले हैं उनको, ये उनको समझना चाहिए। नहीं तो देन दे विल आस्क क्वेश्चंस विच आपको उसका आंसर नहीं देने को मतलब नहीं दे सकते हैं, और फिर उनको लगेगा कि मैं प्रोफेशनल के साथ बात कर रहा हूँ तो मुझे क्यों नहीं आंसर मिल रहे। ओके, तो आपका रोल क्या है, आप क्या कर सकते हैं, या आप किसको प्रेफर कर सकते हैं, ये सब आपको एस्टेब्लिश करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि रैपो एस्टेब्लिश करें। मतलब क्या, कि आपका और उनका एक रिलेशनशिप डेवलप होना चाहिए, अ सेफ एंड ट्रस्टवर्दी रिलेशनशिप, जिसकी वजह से वो आपके साथ बात करेंगे अपने फियर्स के बारे में या आपके उनके एंजाइटी के बारे में। सी, आप, हमारे जो पेशेंट है वो एकदम फ्रेजाइल है, फिजिकली मेंटली भी फ्रेजाइल रहते हैं, क्योंकि उनको जो इलनेस है अगर एडवांस स्टेज में आते हैं तो वो सब ट्रीटमेंट करके या अचानक से एडवांस स्टेज में हो, फिर भी देयर आर लॉट ऑफ इमोशंस और सब उनके मन में है। तो वो निकालने के लिए हम लोग को उनके साथ अच्छा रिलेशनशिप करना जरूरी है। सेकेंड इज, जो हमको समझेगा कि अच्छा ठीक है ये उनके इश्यूज है, तो उसके बारे में उसके साथ काम करने में शुरुआत करनी है, उनको सपोर्ट देना है, और उनकी तरफ से भी पार्टिसिपेशन चाहिए। इट इज ऑलवेज पैलिएटिव केयर में, इट्स ऑलवेज अ टीम अप्रोच। तो टीम में जैसे बाकी के लोग होते हैं, वैसे पेशेंट एंड फैमिली मेंबर्स आर आल्सो एन इम्पोर्टेंट पीपल, जो जिनको लेके हमको काम करना है। तो उनके साथ उनका पार्टिसिपेशन, वो क्या चाहते हैं वो हमको समझना है। ठीक है,
एंड टर्मिनेशन, असेसिंग द आउटकम। अभी वो जो 10 दिन रहेंगे उसके बाद वो चले जाएंगे, तो हम लोग ने जब वो आए थे तब हमने क्या सोचा था उनके साथ हम करेंगे, या उनको क्या हेल्प चाहिए, और एंड में जब वो जा रहे हैं तभी हमने कितना अचीव किया, कितना नहीं किया, क्यों नहीं किया, ये सब का थोड़ा असेसमेंट होना है। और अगर टर्मिनल हो गया, मतलब पेशेंट की डेथ हो गई, सो सेइंग अ प्रॉपर गुड बाय टू द पेशेंट, ये हुआ है कि नहीं, फैमिली को सपोर्ट मिलेगा कि नहीं, ये सब हमको देखना है। सो 3 फेजेस में हमको कम्युनिकेशन करना है। ओके, तो हम लोग कम्युनिकेशन क्यों करते हैं? कम्युनिकेशन 4-5 चीजों के लिए करना जरूरी है। तो कम्युनिकेट मतलब हम लोग ने जैसे बोला कि मैं बातें करती हूँ और मैं कुछ हेतु से बात करती हूँ, इसमें फर्क है। हाँ, मैं बात करके आई, मैं बोल के आई, इससे अलग है कम्युनिकेशन करना। कम्युनिकेशन स्पेसिफिक पर्पस है, स्पेसिफिक गोल है। जो आप बातचीत करेंगे उसके लिए एक स्पेसिफिक गोल है, इसके लिए आप उनके साथ बातचीत कर रहे हैं। ओके, फॉर्मल नॉन फॉर्मल। फॉर्मल टॉक जब आप करते हैं तब आपको ये फेजेस का सोचना है, हम क्यों कम्युनिकेट कर रहे हैं। मुझे इंफॉर्मेशन देनी है उनको, मुझे उनको एजुकेट करना है, बोलना है कि क्या है आपकी स्थिति और क्यों आपको जो हो रहा है वो हो रहा है। मोटिवेट भी करना है मेडिसिन लेने के लिए, ट्रीटमेंट लेने के लिए, या बाकी कुछ चीजें हैं उसके लिए। या अगर एडवांस स्टेज में है और फैमिली में आपका रोल आ गया कि आपको बात करना है, फैमिली इश्यूज आपको दिखे और आपको उनको बोलना है कि नहीं पेशेंट को, कि आपको ओपनली फैमिली के साथ बात करो, तो इन सब के लिए मोटिवेट करना है, काउंसलिंग करना है उनको बेसिक। और ये सब क्यों करना है? रिड्यूसिंग द स्ट्रेस। वी एक मन में रहना है कि स्ट्रेस रहता ही है उनको, है ना, इतना टर्मिनल इलनेस है तो स्ट्रेस रहेगा फैमिली को, पेशेंट को। तो वो स्ट्रेस हम किस लेवल तक कम कर सकते हैं, इसके लिए हमको ये सब चीजें करनी है। ऐसी तरह से बातचीत करनी है उनके साथ कि उनको दे विल फील रिलैक्स, दे विल फील काम, दे विल बी एट पीस। ठीक है ना? तो क्यों कम्युनिकेशन डिफिकल्ट है? अगर मैं पूछूं आपको कि अगर आपको कम्युनिकेट करना है पेशेंट के साथ, या डॉक्टर्स को भी है या सोशल वर्कर्स को भी है जो नए हैं फील्ड में, तो कम्युनिकेशन क्यों डिफिकल्ट है पेशेंट के साथ या फैमिलीज के साथ, वो मुझे बताइए। है क्या कम्युनिकेशन डिफिकल्ट या इजी है? कौन बताएगा? मैम, हम्म जब भी पेशेंट क्रिटिकल कंडीशंस में जा रहता है या वर्स्ट कंडीशन में रहता है, डिसीज प्रोग्रेस होता है, तो वो हम्म पेशेंट और रिलेटिव रेडी एक्सेप्टेंस उनके पास नहीं होता है, तो वो कम्युनिकेट करने के टाइम डिफिकल्ट जाता है। हम्म पर एक्सेप्टेंस, क्यों क्यों डिफिकल्ट जाता है, वही मैं पूछ रही हूँ। पेशेंट और रिलेटिव एक्सेप्ट नहीं करते हैं ना कुछ सिचुएशंस, हाँ, तो वो और टाइम हम्म मीन्स यंग पेशेंट है, वो टाइम ज्यादा प्रॉब्लम्स आते हैं, हम्म इलनेस बढ़ता है या डिसीज प्रोग्रेस होता है वो टाइम। नो, आई एम नॉट आस्किंग व्हेन, व्हाई, क्यों क्यों डिफिकल्ट रहता है। मेरे से आपको अगर बात करनी है, मैं पेशेंट हूँ, मेरे से बात करनी है, तो आपको क्यों मेरे साथ बात करने में दिक्कत आती है? एक्सेप्टेंस मेरा नहीं है तो क्या मुश्किल आती है बात करने में? क्यों मुश्किल आती है? उसको उनको समझाने के लिए कौन से शब्दों में समझाऊं, ये मुश्किल आता हाँ, है। हम्म राइट, नॉलेज, राइट। सो ये 3-4 चीजें हैं जिसकी वजह से हमको कम्युनिकेशन डिफिकल्ट लगता है। एक तो लैंग्वेज और डायलेक्ट है ना। हम जहाँ काम करते हैं और पेशेंट्स जहाँ से आते हैं, अलग अलग जगहों से आ सकते हैं, तो उनका लैंग्वेज अलग हो सकता है, या
स्टाइल ऑफ टॉकिंग अलग हो सकता है। अभी महाराष्ट्र में भी मैं लास्ट सेशन में भी बोला था कि थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे भाषा थोड़ी थोड़ी चेंज हो जाती है, तो वो जो स्पेसिफिक वर्ड्स है वो हमको नहीं मालूम, तो वो अगर वो बात करेंगे तो इट बिकम्स डिफिकल्ट। शेयर डिस्ट्रेस, मुझे भी पता है कि पेशेंट का कंडीशन खराब है, पेशेंट को या फैमिली को खुद को भी पता है कि कंडीशन खराब है, तो ये दोनों को पता है, तो थोड़ा मेलंकोलिक स्टेक आता है, हमको भी बुरा लगता है, उनको तो ऑलरेडी दे मस्ट बी इन अ बैड स्टेट, तो वो बात करने में दिक्कत होती है। या हमको अगर वो पूछे कि मुझे अभी कितना दिन, मैं कितने दिन जीऊंगा, ऐसे पूछा, तो हमको स्पेसिफिक तो मालूम नहीं है कि 4 दिन के बाद, 1 महीने के बाद, सो हाउ टू से आई डोंट नो, मुझे पता नहीं है। या ये ट्रीटमेंट मुझे सूट करेगी कि नहीं सूट करेगी, मैं आयुर्वेदिक मेडिसिन लूं कि नहीं लूं, ये सब जो है जो हमको नहीं पता कि, तो हम लोग ये बताएंगे कि नहीं मुझे पता, तो बोलेंगे कि अरे ये तो प्रोफेशनल है, फिर भी उनको मालूम नहीं है ना। फियर ऑफ ब्लेम, कि मैंने अगर उनको बोला कि हाँ आपको कैंसर है, या आपने देखा, आप वुंड्स देखते हैं, वुंड्स वो पूछेंगे कि ये ठीक कब होगा, और आपको पता है अगर नॉन हीलिंग वुंड है तो आप बोलेंगे कि ये हील नहीं होने वाला, तो फिर वो ऐसा है कि अरे ये सिस्टर ने बोला कि नहीं ठीक होगा, मतलब क्या। फियर ऑफ क्रिटिसिज्म, क्रिटिसाइज करेंगे कि अरे ये क्यों ऐसे बोल रही, यही है नर्स जो हमको ऐसे बोलती है। हमको कभी कभी टाइम नहीं मिलता है, बहुत तो पेशेंट लोड है, तो हमको टाइम नहीं मिलता है पेशेंट के साथ प्रॉपरली कम्युनिकेट करें कि क्या है उनके इश्यूज, ठीक तरह से समझे। ऊपर ऊपर हम बात कर सकते हैं पर डेप्थ में जाके नहीं कर सकते। और सबसे डिफिकल्ट पार्ट ये है कि अपसेटिंग द पेशेंट एंड हैंडलिंग रिएक्शन। क्या होगा अगर वो पेशेंट रोने लगे, क्या होगा अगर वो गुस्सा करे, तो मैं कैसे उनको संभालूं, या एकदम चुप बैठ जाए, तो फिर हैंडल कैसे करने का, ये हमारे भी मन में क्वेश्चंस है। और हमको इसके लिए लगता है कि अरे मिनिमम कम्युनिकेशन करेंगे तो अच्छा है, बहुत डीप जाएंगे तो बहुत इश्यूज आ जाएंगे, और वो फिर मैं हैंडल कैसे करूं। मैं अभी एक पेशेंट जो देख रही हूँ, उनके प्रोफेशनली नहीं है ये, पर वो फैमिली का ये प्रॉब्लम हो रहा है कि फैमिली, उनके बच्चे, पेशेंट फीमेल है तो उनके बच्चे उनके पास जाके बैठते हैं, और उनके साथ वो पेशेंट बहुत क्वेश्चंस पूछती है, पर वो इन डेप्थ नहीं जाते हैं, बोलते हैं कि अगर वो ज्यादा क्वेश्चंस पूछे तो, अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस पूछे तो मैं कैसे उनको बोलूंगा कि मुझे मालूम है कि आप ठीक नहीं होने वाले हो। सो ये सब भी हैंडल करने को अगर नहीं आया, तो हमको लगता है कि ये बात हम न करें, ठीक है ना। अभी पेशेंट का व्यू क्या है, पेशेंट क्यों नहीं हमारे साथ बात करते, हम लोग को लगता है ना कभी कभी कि पेशेंट्स हमारे साथ बात नहीं कर रहे हैं ओपनली, तो क्यों नहीं करते होंगे, क्या लगता है आपको, कौन बताएगा। लगता पेशेंट्स को दिक्कत आती है हमसे बात करने में कि नहीं आती है, डायरेक्ट बोलते हैं। नहीं, आती है, क्यों क्यों आती है, तकलीफ होती है उनको हमारे साथ बात करने में। कोई कोई सिस्टर्स एकदम मिस क्लोजली बात करते हैं, कुछ सिस्टर्स बात नहीं करते, तो उनको भी कंफ्यूजन होता है, उनका स्वभाव कैसा है, वो रिएक्ट कैसे करेंगे। हम्म, राइट। और और डायरेक्टली कैसे बात करें, यही उनका ज्यादा। बराबर। तो ये हो सकते हैं पेशेंट के माइंड में चीजें कि प्राइवेट टाइम नहीं है नर्सेस के पास या डॉक्टर्स के पास, एकदम दिख रहे हैं कि बहुत बिजी हैं, तो कैसे उनके साथ बात करें। कभी कभी प्राइवेसी नहीं रहती है ना, हमको ये सब बातें करने के लिए थोड़ा तो प्राइवेसी चाहिए, क्लोज्ड एनक्लोजर चाहिए, ये नहीं कि अलग रूम में जाए, पर पर्दे हो जहाँ हम सिर्फ पेशेंट और वो नर्स या डॉक्टर या जो भी है उनके साथ बात कर सकते, वो नहीं होता है। कभी कभी उनको खुद को डर लगता है कि अगर वो, हम उनको पता है कि बाबा ये कैंसर है और वो ठीक नहीं होने वाला, पर ये सुनने के लिए, जो एक्सेप्टेंस का आप बात कर रहे थे, कि सुनने में भी डर लगता है कि अरे बाबा ये तो सच
बोल देंगे। अफ्रेड ऑफ ट्रीटमेंट बीइंग डिनाइड कि अगर मैंने ज्यादा क्वेश्चंस पूछ लिए और उन्होंने डॉक्टर को या नहीं अच्छा लगा तो फिर वो नहीं देंगे हमको ट्रीटमेंट, तो क्या करेंगे? फियर, जैसे हमको फियर है कि अब मैं कैसे हैंडल करूं इनका इमोशंस, वैसे उनको भी है कि अगर मुझे रोना आए, मुझे कुछ हो जाए तो फिर मेरे को अच्छा नहीं लगेगा, कि मेरी इमेज ठीक रहनी चाहिए। अनफेमिलियर सराउंडिंग्स, आपने देखा होगा कि छोटे शहर से या छोटे गांव से जब पेशेंट्स बड़े हॉस्पिटल्स में आते हैं तो वो बहुत सब ओवरवेल्म हो जाते हैं सब देख के, और वो अपने खुद की बात नहीं कर सकते। मेड स्पीच, हम लोग बहुत टेक्निकल टर्म्स यूज करते हैं, बात करते हैं ना, हम लोग के लिए इजी है समझने के लिए और बोलने के लिए, पर फॉर द पेशेंट और रिलेटिव वो लगता है कि अरे बाप रे, इतने बड़े बड़े टर्म्स यूज किए, मतलब कुछ तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। फियर ऑफ क्वेश्चनिंग प्रोफेशनल्स, अगर उन्होंने पूछा कि ये क्यों लेना है इतने बार दवाई, मुझे नहीं लेनी है, ऐसा बोलेंगे तो कैसे लगेगा? फियर ऑफ लूजिंग कंट्रोल इज सेम एज कंट्रोल ओवर इमोशंस। और फियर ऑफ सफरिंग एंड डेथ, कि मुझे बहुत तकलीफ होगी और इवेंचुअली डेथ होगा, इस वजह से वो लोग बात करने में हिचकिचाते हैं। और एक्सपेक्टेशन ऑफ मेडिकल मिरेकल्स, कि कुछ तो जादू हो जाए और मैं ठीक हो जाऊं। ठीक है ना? ये एक इम्पॉर्टेंट स्लाइड है कि हम कम्युनिकेट कैसे करते हैं, हम और पेशेंट्स भी। हियरिंग है, हम सुनते हैं, ये तो हमें पता है। सीइंग, हम देख के नॉन वर्बल क्यूज से हमको पता चल सकता है। स्मेल, जैसे कि पेशेंट का वुंड का स्मेल है या कुछ ऐसा है, तो वो सराउंडिंग ऐसा हो जाता है कि हमको बात करने में दिक्कत हो सकती है। टच इज अ वेरी पावरफुल मीडियम, पर कैसे टच करना है, कहाँ टच करना है, ये सब हमको थोड़ा देखना है। गो स्लो, क्योंकि पेशेंट को कितना टच ठीक लगे इसका अंदाज लेके हमको आगे जाना है। और टेस्ट, अगर टेस्ट मुंह में, पेशेंट के मुंह में टेस्ट नॉशियाटिक है या उसको मेडिसिन की वजह से तकलीफ हो रही है, तो वो हमारे साथ बात करने में उसको दिक्कत आएगी। तो ये सब चीजें भी हमको ध्यान में रखनी है जब हम उनके साथ कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है ना? व्हेन इज कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड? सब टाइम पे, अलग अलग, फ्रॉम डायग्नोसिस टू एंड ऑफ लाइफ, हर टाइम पे अलग अलग। जब नेक्स्ट टाइम हम बात करेंगे वो डिटेल में जाएंगे कि कैसे रहता है, क्योंकि हर टाइम पे इश्यूज अलग है, हर टाइम पे इमोशंस अलग है। एक एक कॉमन थ्रेड है, पर फिर भी अलग अलग स्टेजेस पे अलग अलग तरीके से हमको उनके साथ बात करनी है। ठीक है ना? तो कॉमन इमोशंस, जस्ट फॉर यू टू नो कि इतने सारे इमोशंस उनको रहते हैं। हाँ, एंगर है, रेस्टलेसनेस है, सैडनेस है, गिल्ट है, ये सब बैकग्राउंड में उनको है ये। तो कब क्या एक्सप्रेस होगा हमको पता नहीं है, पर ये सब रहते हैं। तो वी हैव टू बी केयरफुल व्हेन वी आर टॉकिंग टू देम, कि बात करते टाइम कि ये सब शायद उनके मन में ये सब चल रहा है, इसके लिए हमको उनके साथ सावधानी से बात करनी है। एंड मेनी मोर। ठीक है? हाउ डू वी कम्युनिकेट? आपको पता है, वर्बल, नॉन वर्बल, बराबर है ना? पर ये भी स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये समझना है कि 55% इज बॉडी लैंग्वेज। मेरा फेशियल एक्सप्रेशन, मेरा पोस्चर, मेरे जेस्चर्स, में हाथ कैसे यूज करती हूँ, पैर में बहुत हिला रही हूँ मैं खुद, मैं जब बात करती हूँ तभी। और पेशेंट का भी देखना है कि पैर हिला रही हूँ, आई कांटेक्ट रख रही हूँ कि नहीं रख रही हूँ। ये सब डिटरमिन करेगा कि आपका कम्युनिकेशन हो रहा है। मतलब जब आप ये सब देखेंगे तभी भी आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है। सो यू हैव टू टेक बहुत सारा इंफॉर्मेशन, इस तरह से आपको मिलेगा। वर्ड्स या जो बात करते हैं उससे कम इंफॉर्मेशन मिलेगी, क्योंकि वो जो बात करते हैं उसके पीछे भी बहुत अर्थ रहता है, और वो मीनिंग हमको समझने के लिए नॉन वर्बल क्यूज सब हमको ध्यान रखना है उनका, तभी हमको समझेगा। कि पेशेंट बोलता है कि मैं दर्द में नहीं हूँ और आंख में पानी है, या वो बोल रहा है कि मेरा सब ठीक चल रहा है पर फिजिटिंग कर रहा है, या हाथ के ऊपर से हाथ ये कर रहा है कि दुख रहा है। सो ये सब करना है। सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट इज पिच एंड टोन ऑफ योर वॉइस। तो किस पिच में आप बात कर रहे हैं, एकदम लो पिच में है, हाई पिच में है,
तो भी पेशेंट के ऊपर उसका परिणाम होगा। और उसका ऑपोजिट है कि पेशेंट अगर लो टोन में बात कर रहा है या हाई पिच में बात कर रहा है तो क्यों कर रहा है और उसको साथ उसके पीछे का इमोशन क्या है, ये हमको समझेंगे अगर हम उसके ऊपर ध्यान रखेंगे। पर हम जब बात कर रहे हैं तो हमारा बॉडी लैंग्वेज हमको ठीक से रखना है, उसके ऊपर हमको ध्यान देना है और हमारे टोन और पिच पे भी हमको ध्यान देना है कि कैसे हम उनके साथ बात करें। मैं भी अभी एक स्पेसिफिक पिच में बात कर रही हूँ, अगर मैं बहुत लाउड हो जाऊं या एकदम स्लो हो जाऊं तो फिर वो जो टेम्पो है और वो जो सब आपके ऊपर, आपको जो समझना है उसके ऊपर परिणाम होगा, ठीक है ना। and only 7% of words are written or spoken, ये रहते हैं, ठीक है ना। तो जो बात कर रहे हैं वो उससे टिप ऑफ द आइसबर्ग जैसे बोलते हैं, वो थोड़ा है, नीचे बहुत सारा है जो हमको देखना है। और ऐसे आपको आप सोचेंगे अरे बाप रे इतना सब देखना है तो टाइम किधर है, मैं काम करूं या ये सब देखूं। पर हमारी जैसे जैसे हम ज्यादा पेशेंट्स देखते हैं और ये सब हमारे मन में अगर रहेगा तो वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। उसके लिए ज्यादा स्टार्टिंग में ज्यादा आपको उसके ऊपर मेहनत लेनी पड़ेगी, पर एज टाइम गोज बाय इट विल कम टू यू। मतलब आपको समझेगा, नजर बैठती है ऐसे बोलते हैं ना हम लोग, तो आपको समझेगा पेशेंट देख के कि उसको क्या हो रहा है एंड आप उसको आप फीडबैक लेके समझ जाएंगे कि जो मैं सोच रही हूँ और जो पेशेंट को हो रहा है वो सेम है, ठीक है। तो बैरियर्स टू कम्युनिकेशन क्या हो सकते हैं? बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, मैं थोड़ा फास्ट जा रही हूँ क्योंकि टाइम का लिमिटेशन है, ठीक है। तो बैरियर्स क्या है, ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है और जब हम मंडे को फिर से मिलेंगे तब तक आपको सोचना है कि ये सब चीजें हो रही हैं क्या और क्या उसके ऊपर हम कर सकते हैं। फिजिकल बैरियर जो टेबल रहेगा बीच में हमारे, जब बात करते टाइम टेबल अगर बहुत बड़ा है तो वो नहीं है, हमको बाजू में पेशेंट को बिठा के टच हम कर सकते हैं, उनको कंफर्ट कर सकते हैं, ये लेवल पे उनको हमको बिठाना है। फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम, उनको सुनाई नहीं दे रहा है क्या, ये आपको देखना है कि बाकी कुछ है क्या कि जिसकी वजह से वो आपको, आप जो बात कर रहे हैं वो नहीं समझ पा रहे हैं। इंडिविजुअल लिंग्विस्टिक एबिलिटीज, ये तो हमने बात किया था, है ना, कि अलग अलग भाषा हो सकती है, एक ही भाषा में अलग अलग डायलेक्ट होता है, अलग अलग बदलती है, तो वो समझने में दिक्कत आती है। द इमोशनल बर्डन, गिल्ट है, हम लोग ने इतना इमोशंस दिखाए, मैंने वो है क्या आपको देखना है। जेंडर, जेंडर मतलब क्या, मेल नर्स या मेल डॉक्टर टॉकिंग टू अ फीमेल पेशेंट एंड वाइस वर्सा। तो उससे फर्क पड़ता है बातें करने में और इंफॉर्मेशन देने में। कभी कभी ऑपोजिट जेंडर के लोगों के साथ हम लोग कंफर्टेबल नहीं रहते हैं बात करने में। प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन मतलब किस तरह से हम बातें करते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं, बहुत मेडिकल लैंग्वेज यूज कर रहे हैं या एकदम उसको एकदम बोल रहे हैं कि नहीं नहीं इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं है। इस हिसाब से हमको देखना है कि क्या कितना कैसे पहुंचेगा हमारा जो बात करना है वो पेशेंट के पास। एंड इनफेक्टिव लिसनिंग, उसके बारे में मैं थोड़ी आगे बात करूंगी कि हम सुन रहे हैं, मतलब सिर्फ हमारे कान पे शब्द पड़ रहे हैं कि हम लोग एक्चुअली सुन रहे हैं और उसके ऊपर कुछ करना चाह रहे हैं। ये हमको फॉर दिस यू हैव टू बी वेरी अलर्ट, ठीक है ना। ब्लॉकिंग बिहेवियर, जैसे बैरियर्स है कम्युनिकेशन में वैसे ब्लॉकिंग बिहेवियर है। वो कौन से हैं कि ये हम करते हैं, हमको उसकी वी हैव टू बी अवेयर, अवेयरनेस चाहिए कि ये सब चीजें हमारी हो रही हैं और हम न करें। ये सब करेंगे तो हमारा कम्युनिकेशन अच्छा रहेगा, नहीं तो इट विल गो टुवर्ड्स बैड कम्युनिकेशन। और फिर हमको लगेगा कि अरे मैंने इतना सारा बात किया, इतना टाइम बात किया, इतना सब इतना टाइम स्पेंड करके बात किया, फिर भी पेशेंट को और फैमिली को कुछ समझा नहीं और उनमें कुछ फर्क नहीं आ रहा है। मैंने इतना समझाया पर कैसे समझाया,
ये समझना जरूरी है। और उसमें ये चीजें बीच में आई हैं क्या कि इंटरप्टिंग, वो बात कर रहे हैं तो हमको लगेगा हाँ हाँ अभी मुझे पता है, इसके बाद ना हाँ मतलब आपको ये हो रहा होगा, हाँ। या ऑफरिंग ओपिनियन कि वो पूछ ही रहे हैं कि नहीं रहे हैं ओपिनियन, हमको देना है, हम बोलेंगे नहीं नहीं ये मत लीजिए या ये लीजिए, ये आप करेंगे तो अच्छा होगा। मतलब खाने पीने का, मेडिसिन का, कुछ भी हम लोग ओपिनियन देते हैं। बीइंग प्री ऑक्यूपाइड, वो आपके पास बात करने आए हैं और आप कुछ दूसरा कर रहे हैं, फोन पे देख रहे हैं या आपके कलीग के साथ बात कर रहे हैं, तो नहीं, it is not a very good gesture. Taking notes or calls लेना is not the best thing. पर नोट्स लेना है तो उनको बता के लेना है कि मुझे ये नोट्स लेना है क्योंकि मुझे आई नीड टू कीप अ रिकॉर्ड, या मुझे रेफर करने के लिए मुझे नोट्स चाहिए, तो इसके लिए मैं ले रही हूँ। मेकिंग अजम्पशंस मतलब क्या कि एक स्पेसिफिक सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड हो या स्पेसिफिक हैबिट्स हो, तो हम सोचते हैं ना कि बाबा इसने बहुत दारू पीता है इसलिए ये हो गया, बहुत स्मोकिंग करता है इसलिए ये हो गया, या वो उसका बाकी बिहेवियर ठीक नहीं है ना इसके लिए उसको ये हो गया। सो वी कोऑर्डिनेट, हमारा जो मन में चीजें हैं वो हमारे मन में रहनी चाहिए, हमको उनको उनके सामने नहीं बातें करनी चाहिए। चेंजिंग द सब्जेक्ट, जो हमको ही अस्वस्थता होगी अगर पेशेंट ज्यादा पूछने लगे कि अब मेरा क्या होगा, मुझे अभी मुझे जो मैं होम विजिट पे गई थी वो पेशेंट मुझे पूछ रही थी कि मुझे डर लगता है कि मैं जब मरूंगी तब मुझे सफोकेशन होगा, मुझे वो दर्द होगा, ये सब वो मुझे बोल रही है। और मैंने उनको बोला कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं, अभी आप मुझे पहले बोलो कि आपका अभी दर्द कैसा है, सो यू डोंट वांट टू एड्रेस दैट, तो इसके लिए हम लोग टॉपिक चेंज कर देंगे। जजमेंट नहीं करना है एंड फॉल्स रिएश्योरेंस नहीं देना है। मैं जो जो होम विजिट का मैं जिक्र कर रही हूँ, उस होम विजिट पे मैं गई और मुझे वो लड़की ने उनकी जो लड़की है उन्होंने मुझे बोला आज कल आयुर्वेदिक डॉक्टर आए थे और मैंने आयुर्वेदिक मेडिसिन दिए हैं आज, और उनको बताया कि ये मेडिसिन से आप ठीक हो जाओगी, तो शी इज हैप्पी एंड शी इज नाउ टुडे शी इज नॉट क्राइंग। हाँ, तो ये फॉल्स एश्योरेंस है, ये सच नहीं है। मेडिसिन से ये मेडिसिन आयुर्वेदिक मेडिसिन दर्द कम करेगा, हाँ, और वो ठीक हो जाएंगी, मोर सो ठीक हो जाएंगी, इज नॉट व्हाट इज गोइंग टू हैपन। शी इज अ डाइंग पेशेंट, थोड़े दिनों में शी विल आई मीन इट हर कंडीशन विल नॉट बी गुड, तो ये बोलना उनको गलत है, ठीक है ना। तो ये करेंगे तो बैड कम्युनिकेशन है। बैड कम्युनिकेशन से क्या होगा, बैड कम्युनिकेशन से कंफ्यूजन बढ़ेगा, एक जन ये बोल रहा है एक जन दूसरा बोल रहा है, तो प्रॉब्लम होएगा, पेशेंट को कंफ्यूजन होगा। हैम्पर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप मतलब जो ट्रस्ट होना चाहिए वो ट्रस्ट नहीं रहेगा। क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ सर्विसेज, दे मे नॉट टेक योर सर्विसेज, बोलेंगे कि नहीं नहीं ये तो जो बोल रही है वो हो नहीं रहा है तो मुझे जाना है। एंजाइटी टेंशन और बढ़ेगा और डिससेटिस्फेक्शन होगा, ये सब हमको नहीं चाहिए। अगर ये नहीं चाहिए तो हमको क्या करना है वो मैं अभी आपको बताती हूँ। ओके, तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन करने के लिए क्या करना है, एक्टिव लिसनिंग उसके बारे में बताऊंगी। आई कांटेक्ट रखना है जो हमने बात किया था, ठीक है ना। गेटिंग कनेक्टेड, आई कांटेक्ट मेंटेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, दिस इज वन ऑफ द गुड इंडिकेटर्स ऑफ व्हाट इज हैपनिंग टू द पेशेंट। ओके, आई कांटेक्ट है तो पेशेंट इज कंफर्टेबल, शी इज एबल टू टॉक टू यू, पर इधर उधर देख रही है, नीचे देख रही है, आपको डायरेक्ट आपके सामने नहीं बात करी, तो यू हैव टू थिंक ऑफ व्हाट इज हैपनिंग, ठीक है ना। उनके आई लेवल पे बैठ के बातें करना, व्हेन पेशेंट सो रहा है तो आप खड़े रह के बात करेंगे तो दैट इज नॉट एट आई लेवल, यू हैव टू सिट डाउन, चेयर पे बैठ के उनके साथ बात करना है। 2 मिनट का भी बात हो पर आपको बैठ के बात करना है। गेटिंग कनेक्टेड, जो मैंने बोला कि एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना जरूरी है उनके साथ। शोइंग कर्टसी,
उनके नाम से उनको बुलाइए, ना करके उनके बेड नंबर या इससे, है ना। आंटी बोलो, मौसी बोलो, कुछ भी बोलो, चाचा बोलो, पर उनको उनके इससे एड्रेस करेंगे तो उनको अपनापन लगेगा। डेवलप ट्रस्ट एंड मेंटेन प्राइवेसी। समटाइम्स बहुत सारे डीपर इश्यूज के बारे में वो आपसे बात करते हैं या बहुत कंसर्न्स के बारे में बात करते हैं। आपको वो थेरेप्यूटिक इंफॉर्मेशन, मतलब वो इंफॉर्मेशन आपको थेरेप्यूटिक यूज के लिए ही इस्तेमाल करना है, आपको लूज टॉक में नहीं करना है। हाँ, आपको आपके सीनियर्स के साथ या कलीग्स के साथ वो इंफॉर्मेशन अगर इम्पोर्टेंट है तो ही शेयर करना है, नहीं तो नहीं करना है। ओके। हियरिंग वर्सेस लिसनिंग, ये आप दो देख रहे हैं पिक्चर्स, दो अलग हैं, है कि नहीं। एक बात कर रही है और दूसरा सुन रही है, पर वो कितना उसके दिमाग के अंदर जा रहा है पता नहीं है। एंड द सेकेंड इज वेयर शी इज अटेंटिव, है कि नहीं। तो हियरिंग मतलब फिजिकल प्रोसेस, नेचुरल है, पैसिव है। हमको बहुत आवाज सुनाई देते हैं, है कि नहीं, बहुत सारी चीजें चल रही हैं बैकग्राउंड में, पर हमको तो उसमें से हमको क्या सुनना है ये हमको डिसाइड करना है। उसी हिसाब से पेशेंट जब बात कर रहा है तो फिल्टरिंग करना है, पर फिल्टरिंग के लिए आपको अटेंशन देना पड़ेगा कि वो क्या बात कर रहे हैं, उसमें से क्या फिल्टर करें और क्या नहीं करें। So it is a physical process and it has to be active. It is a learned skill. ये सीखना पड़ता है जनरली, ऐसे ऑफ हैंड नहीं आता है। थोड़ा सीखेंगे तो हमको ऑटोमेटिकली एक्टिव लिसनिंग आ जाएगा एंड फिल्टर भी कैसा करना है वो हमको समझेगा। सो लिसनिंग इज हार्ड, है ना, बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि उसमें हमको मन अपना लगाना पड़ता है एंड यू मस्ट चूज टू पार्टिसिपेट। अगर हमको वो पेशेंट को मदद करने की चाह है तो हमको उनका सुनना ही है, क्या बोलते हैं वो, और उसमें से फिर हमको चूज करना है कि क्या हमको रिटेन करना है, बाकी सब बाजू में हटा देना है। तो एक्टिव लिसनिंग में क्या कर सकते हैं हम, तो इट्स अ स्ट्रक्चर्ड फॉर्म ऑफ लिसनिंग। हाँ, तो उसमें बियॉन्ड द फिजिकल कंप्लेंट, सो नॉन वर्बल जो कम्युनिकेशन है उसको ज्यादा इसमें यूज करना है कि हमको क्या दिख रहा है, वो कैसे हैं, कैसे बैठे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, कैसे आई कांटेक्ट कैसा है, फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे हैं, हैंड जेस्चर्स कैसे यूज कर रहे हैं, बॉडी स्टिफ है कि कैसे है या रिलैक्स्ड है, क्या है, ये सब हमको देखना है। जो बोल रहे हैं उसके पीछे का अर्थ क्या है उसके बारे में हमको सोचना है और फिर ही उनके साथ बात करनी है, ठीक है ना। पेशेंट खुद को शायद कभी समझे नहीं कि मेरे को सच में क्या हो रहा है, तो आप पूछ सकते हैं कि आपको गुस्सा आ रहा है क्या, आपको डर लग रहा है क्या, या मतलब जो आप बोल रहे हैं उसके हिसाब से मुझे लग रहा है कि आपको बहुत एंजाइटी है। तो कभी कभी वो डिनाई करेंगे कि नहीं नहीं मेरे को तो एंजाइटी नहीं है, पर अगर आपको दिखे कि फिजिटिंग कर रहे हैं, हाथ बहुत ये कर रहे हैं, हाथ के साथ खिलवाड़ हो रहा है, या बोलते टाइम ये swallowing में उनको ये हो रहा है, डिफिकल्टी हो रहा है, या पैल्पिटेशन लग रहे हैं आपको, या फिजिटिंग ज्यादा है, तो आपको समझना है कि ये एंजाइटी है। अगर वो बोल रहे हैं कि नहीं है, फिर भी हमको ये पता होना चाहिए कि दिस इज ऑल व्हाट इज की एंजाइटी है, और वो क्या एंजाइटी है उसके बारे में मुझे उनसे आगे बात करनी है। यू हैव टू प्रोवाइड अ एटमॉस्फेयर ऑफ ट्रस्ट एंड कंफर्ट, कि उनको लगना चाहिए कि मेरे साथ बात करेंगे तो उनको कुछ तो सॉल्यूशन मिलेगा, या सिर्फ ये सुनते हैं फिर भी मुझे अच्छा लगता है। समटाइम्स ओनली लिसनिंग ऑल्सो हेल्प्स। और फिजिकल पेन से अलग जो उनके पेन है या उनके जो इश्यूज है, जो हम पैलिएटिव में आपने टोटल पेन का कॉन्सेप्ट देखा होगा ना, तो फिजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल, स्पिरिचुअल, ये सब चीजें, ये इश्यूज हैंडल करेंगे तो फिजिकल पेन पे उसका असर होगा। मतलब फिजिकल पेन में नॉट बी ओनली बिकॉज ऑफ द फिजिकल प्रॉब्लम,
इट कैन बी बिकॉज ऑफ किस घर में पैसे का प्रॉब्लम है, या उनको एंजाइटी है, या ऐसे कुछ है, या उनको लग रहा है कि बाबा मैंने इतने साल डॉक्टर का किया। मेरा जो पेशेंट है वो पंढरपुर करके हमारे यहाँ एक जगह है, वहां पे रहते हैं, विठल का ये है स्थान है वो, तो उसके मंदिर के बगल में वो रहते हैं। तो वो बोलती थी, वो मुझे बोली कि मैं बहुत गुस्सा हूँ अभी पांडुरंग पे, क्योंकि मेरे को इस कंडीशन में उसने क्यों डाला। मैं पूरा जिंदगी भर मैंने उसकी सेवा की है, और ये उसको दिख नहीं रहा है कि मुझे क्या तकलीफ हो रही है, ये उसने मुझे बोला। तो ये बोलने के लिए आपको वो ट्रस्ट का रिलेशनशिप एस्टेब्लिश होना चाहिए, तभी वो बात करेंगे, नहीं तो वो ये बातें नहीं करेंगे। ठीक है ना। रिफ्लेक्टिव लिसनिंग ज्यादा इस पे जाएंगे नहीं, वी हैव लेस टाइम, पर वही है कि मिररिंग करना है। मतलब क्या करना है कि आपको रिपीट करना है और पूछना है कि जो मैंने सुना वो बराबर है ना। रीफ्रेजिंग, जो उसने बात की है वो अलग तरह से बात करके आप बोलेंगे कि मुझे लगता है आपने बोला कि मुझे ट्रीटमेंट नहीं लेनी, बराबर है मैंने जो सुना है वो इस हिसाब से आपको बोला है। रिफ्लेक्ट बैक ऑन फीलिंग्स, बोलने के पीछे, बात करने के पीछे क्या इमोशन है उनका, वो आपको उनको एक्सप्रेस करके बोलना है। ओके, तो ये सब करेंगे। सो ऐसा लगता है कि अरे बाप रे इतने सारी चीजें करनी है, पर नहीं होता है। व्हेन यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इट, इट विल बिकम ऑटोमेटिक, और हो जाता है। यू इन्वेस्ट इन द पर्सन, उसको क्या हो रहा है उसका थोड़ा आपको अगर अंदाजा आए तो आप उनके साथ ज्यादा अच्छी तरह से कम्युनिकेट कर सकते हैं। इनकरेज करना है उनको उनके इश्यूज के बारे में बात करने में। इफेक्टिव पॉजेस, साइलेंस जो आपको रखना है, और अगर साइलेंस आपको भी रखना है और अगर वो बात करते करते ठहर जाते हैं तो फिर भी आपको अस्वस्थ नहीं होना है कि अरे बाप रे ये तो अभी कुछ बोल नहीं रहा है, मतलब क्या होने वाला है। तो वो साइलेंस बहुत डरावना हो जाता है कि मैं भी कुछ नहीं बोल रही हूँ, वो भी कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो क्या है, मतलब कितना टाइम हम ऐसे ही साइलेंस में बैठे रहें, क्या करना है इसके आगे, हाउ टू टेक इट फॉरवर्ड। तो दिस इज अ वेरी पावरफुल मीडियम ऑफ कम्युनिकेटिंग, कि साइलेंस में भी हमको बहुत सारी चीजें समझ में आ सकती हैं, बिकॉज नॉन वर्बल बिहेवियर ज्यादा होगा उस समय, और आपको वो ऑब्जर्व करना है और वो देखना है कि क्या है, एंड रिस्पेक्टिंग दैट कि अरे बात कीजिए ना, बोलिए ना, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये सब नहीं करना है उनको। और क्लैरिफाइंग डाउट्स, कभी भी इसमें प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए कि मुझे ऐसा लगा कि आप ये बोल रहे हैं बराबर है कि नहीं। ओके, उनको समझने में अगर कोई रॉन्ग है, इंफॉर्मेशन आपने दिया है और आपने उनको पूछा कि क्या बोला मैंने, तो उन्होंने जो बोला उसके हिसाब से अगर आपको लगे कि ये करेक्ट नहीं था, मैंने जो बोला है और वो जो समझ रहे हैं वो अलग है, तो उनके साथ आपको फिर से बात करनी है। ओके, ये साइलेंस का है कि माई साइलेंस इज जस्ट अनदर वर्ड फॉर पेन, कि मैं इतनी तकलीफ में हूँ, इतने दर्द में हूँ कि मैं बात नहीं कर सकती। तो आपको तब शांति बैठना है। एंड साइलेंस स्पीक्स व्हेन वर्ड्स कैन नॉट। तो ये पेशेंट की तरफ से है कि मुझे अगर बहुत मैं तकलीफ में हूँ तो मुझे बात नहीं करनी, या मुझे चुप बैठना अच्छा ठीक लग रहा है, पर उसका मीनिंग आप निकालेंगे तो मुझे ज्यादा फायदा होगा। ओके, एंड समटाइम्स साइलेंस इज रियली अ गुड आंसर। मतलब अगर वो बोलेंगे कि मुझे पता है कि मैंने ना बहुत सिगरेट पिया है, इसके लिए मुझे ये कैंसर हुआ है और मेरी ऐसी स्थिति है, या मैं बहुत बुरी तरह से लोगों के साथ मैंने बर्ताव किया है, इसलिए आज मेरी ऐसी परिस्थिति है कि मुझे मिलने के लिए लोग नहीं आ रहे हैं, या मुझे मेरी केयर करने के लिए कोई नहीं है, या मैंने वाइफ के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है, इसलिए मेरी वाइफ मेरे साथ ठीक तरह से नहीं करती है बर्ताव। ओके, तो इसके ऊपर आपको क्या करना है, आपको चुप ही बैठना है, आपको बोलना है नहीं नहीं बराबर है, ऐसा बोलने की जरूरत नहीं है। इवन इफ यू आर काम,
ही विल अंडरस्टैंड कि बाबा आप वो उसको जो बोलना चाह रहा है वो आपको समझा। ओके, तो एवरी कमेंट, जो हर चीज वो बात करेंगे उसको, उसके लिए जरूरी नहीं है कि हम काउंटर बात करें, हम सिर्फ सुनेंगे तो भी ठीक है, और उनको समझेगा कि कैसे हम उनको समझ पा रहे हैं। हमारे जो नॉन वर्बल क्यूज है उससे हमको उनको दिखाना है कि हमें समझा है। सो साइलेंस इज वन ऑफ देम, नॉडिंग है, अप्रूविंग है, जैसे आप कैसे आप अपना चेहरा यूज करते हैं उस हिसाब से उनको समझेगा कि वो जो बात कर रहे हैं वो आपको अब तक पहुंच रही है। ठीक है ना? देन गुड कम्युनिकेशन से क्या होगा, इट विल एनहांस द थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप। तो उनको पता है कि बाबा मैं बात कर सकती हूँ, नर्स हो, डॉक्टर हो, काउंसलर हो, किसी से भी मैं बात कर सकती हूँ और मुझे बात करके अच्छा लगता है। मेरा जो प्रॉब्लम्स है उसके ऊपर वो कुछ मुझे तरीका बता रहे हैं कि क्या करना है। ओके, इट मे नॉट बी अ सोल्यूशन, यू एवरी कम्युनिकेशन का अनसोल्यूशन में होना जरूरी नहीं है। हमको उनको सुनना है, हमको उनको समझना है और एक डायरेक्शन देनी है। पीपल, ये हमको खुद, जो पहले मैंने बताया कि एज अ पर्सन मुझे ये दूसरे व्यक्ति में मुझे भरोसा चाहिए कि वो खुद की चीजें मैनेज कर सकता है। मैं सिर्फ मीडियम हूँ उनको थोड़ा हेल्प करने का। मुझे उनके प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व करने हैं, वो पेशेंट खुद ही सॉल्व करेगा, पर मुझे एक मीडियम बनना है। मेरा जो नॉलेज है, मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है, उससे मैं यूज करके उनको एक डायरेक्शन दूंगी जिससे वो खुद के प्रॉब्लम सॉल्व करने में ज्यादा इफेक्टिव रहेंगे। ठीक है ना? हमको उनको सॉल्यूशंस नहीं देने हैं, नॉट ऑल द टाइम। इम्प्रूव आउटकम ऑफ केयर, तो बार बार आपके पास आएंगे, बार बार आपका ट्रीटमेंट को फॉलो करेंगे और रिजल्ट आपको अच्छे आएंगे अगर हमने कम्युनिकेशन अच्छा किया है तो। रिड्यूसिंग अनसर्टेनिटी, कि मुझे ये चीजें होंगी क्या, मैं एंड ऑफ लाइफ है तो मुझे, जैसे उन्होंने बोला कि मुझे सांस लेने में तकलीफ होगी क्या, मुझे दर्द होगा क्या, तो उसको मुझे मुझे प्रॉपर आंसर देना है कि क्या होगा। कि अगर मुझे लगता है कि हाँ उनको सांस लेने में तकलीफ होगी तो मुझे बताना है कि हाँ हो सकती है, पर उसके लिए हम आपको ऑक्सीजन दे सकते हैं, आपको कुछ मेडिसिन दे सकते हैं जिसको आप पे कंफर्टेबल होंगे। तो ये इंफॉर्मेशन मिला तो उनको थोड़ा पीसफुल लगता है। गिविंग डायरेक्शन टू द पेशेंट, ठीक है ना? इम्प्रूव पेशेंट इंटरैक्शन, पेशेंट एंड फैमिली मेंबर इंटरेक्शन, ज्यादा टाइम वो आपके साथ बात करेंगे या कुछ भी इशू हो तो आपको बताएंगे। इसके लिए आपको गुड कम्युनिकेशन करना है और आपको सुना। हमारे टाइप ऑफ पेशेंट्स में ज्यादातर सुनेंगे तो बहुत से इश्यूज, मतलब बहुत उनके साथ का रैपो बिल्ड होने में आसानी होती है, क्योंकि वो इतने डॉक्टर्स के पास, इतने लोगों के साथ जाके आते हैं कि, और कोई उनका सुनता है कि नहीं, शायद उन्होंने किसी ने उनका सुना नहीं है। तो सिर्फ उनके साथ बैठ के बात करेंगे, उनको उनकी लाइफ हिस्ट्री पूछेंगे, उनको क्या हो रहा है वो पूछेंगे, तभी भी उनको अच्छा लगता है ना? तो ये हमको इम्प्रूव करना है। तो दिस विल गिव देम, और उससे ही ट्रस्ट बिल्ड होगा और उससे ही वो आपको ज्यादा डीपर इश्यूज के बारे में बताएंगे। प्रमोट्स एडियरेंस टू ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट लेंगे, रिड्यूसेस एंजाइटी, है ना? इन सब के साथ हमको और एक चीज करना है जो है सेल्फ अवेयरनेस। मतलब क्या, मैं कौन हूं और मुझे क्या हो रहा है, मैं क्या सोचती हूँ, मैं क्या महसूस करती हूँ, इसके बारे में हमको पता होना चाहिए, उसके बारे में हमको सोचना चाहिए। मेरी पर्सनालिटी कैसी है, मैं पेशेंट्स के साथ कंफर्टेबल, अभी मेरी एक रिलेटिव है जो डॉक्टर है, फिर भी वो बोल रही है मुझे पेशेंट्स के साथ नहीं अच्छा लगता है काम करने में, उनके साथ बातें करने में मुझे नहीं, मुझे रिसर्च में जाना है, मैं मेडिकल रिसर्च में जाऊंगी। पर उसने पूरा मेडिसिन पढ़ा है, पर वो बोलती है कि मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ पेशेंट्स के साथ। तो ये है क्या, मुझे
मैं किस तरह की हूँ, मुझे लोग अच्छे लगते हैं, मुझे बात करना अच्छा लगता है, मुझे कंपैशन है, ये सब हमको देखना है। नहीं है तो बिकॉज इट्स अ प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट आपको इनकलकेट करना है, पर आपको अवेयरनेस उसका होना जरूरी है। दूसरे मेरे फियर्स क्या है, मुझे मेरे ही घर में ऐसे अगर सेम प्रकार का पेशेंट होगा तो मुझे भी डर है। मेरे क्लोज अगर रिलेटिव है जिसको जो वो इस तकलीफ से जा रहे हैं तो मुझे डर होगा, मेरे रिस्पॉन्सेस अलग होंगे पेशेंट के लिए। मेरी बिलीफ सिस्टम क्या है, मैं क्या सोचती हूँ कि क्या एक प्रकार के लोग ऐसे होते हैं, दूसरे प्रकार के लोग वैसे होते हैं, ये सब मुझे, या मैं आयुर्वेदिक या नॉन एलोपैथिक ट्रीटमेंट्स में विश्वास रखती हूँ। अगर मैं रखती हूँ तो मैं प्रमोट करूंगी, पर इज इट व्हाट इज रिक्वायर्ड और व्हाट इज नीडेड, तो ये हमको सोचना है। मैं इमोशनल हूँ कि नहीं हूँ। मैं अगर इमोशनल हूँ तो मुझे इमोशंस मेरे कंट्रोल करने को आता है कि नहीं आता है, कि मैं भी उनके साथ बह जाती हूँ, है ना। हमको इमोशंस, वी आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स, तो हमको इमोशंस होंगे, हमको भी दर्द होगा, हमको भी तकलीफ होगी, हमको भी गुस्सा आएगा, पर ये सब हम कंट्रोल कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं इन अ प्रोफेशनल रिलेशनशिप। एंड व्हेन यू आर इन फ्रंट ऑफ ऐसे पेशेंट्स जो वल्नरेबल है, जिनको हमारे सपोर्ट की, हमारे मदद की जरूरत है, उनके सामने अगर हम अपने इमोशंस ज्यादा एक्सप्रेस करेंगे तो वो बैक सीट लेंगे, वो उनके इमोशंस नहीं बताएंगे हमको। वो बोलेंगे कि अरे मैं थोड़ा बताऊं तो उनको ही रोना आ रहा है, तो मैं कैसे बताऊं, है ना। तो ये हमको हमको एहसास रहना चाहिए कि हम क्या है, हमको क्या हो रहा है। इफ एट वन टाइम यू फील कि नहीं, मुझे ये सब बहुत ज्यादा हो रहा है इमोशनली, मैं ले नहीं सकती, तो मैं दूसरे मेरी कलीग को भेजूंगी, मैं बोलूंगी कि जाओ आप बात करो उनसे, क्योंकि आज मुझे नहीं हो रहा है। कुछ भी हो सकता है ना, घर में भी कुछ इश्यूज होंगे, या प्रोफेशनल लाइफ में मैं काम पे आई और मेरा झगड़ा हो गया, या मेरा कुछ ये हो गया, अनबन हो गई किसी के साथ, तो मेरा मेंटल मेकअप इज नॉट सच कि मैं पेशेंट के साथ सामने जाके उनके इश्यूज को हैंडल करूं। तो उस टाइम आपको पीछे हटना है, नहीं करना है वो काम उस दिन के लिए। ओके, तो ये सब हमको दिमाग में रहना है। तो आज का जो सेशन है उसमें ज्यादातर ये है कि आपको क्या दिमाग में रखना है और क्या करना है ना। तो प्रैक्टिस करेंगे तो ये आएंगे, पर ये चीजें, इमोशंस क्या है, हमको किस तरह से सुनना है, हमको साइलेंस क्या क्यों मेंटेन करना है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है और वो कैसे यूज करना है, ये सब चीजें हमको ज्यादातर ये सेशन में से टेक अवे करनी है। और यही समझना, मतलब पूरे सेशन का यही क्रक्स है कि ये सब चीजें आप ध्यान में रखो तो आपका कम्युनिकेशन और ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, थैंक यू। आई एम डन। Thank you so much, ma'am. We are in time, yeah, 2:30. Right on time today, huh? Yeah. या अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज आप पूछ सकते हैं मैडम से। फास्ट गया क्या, थोड़ा थोड़ा नो फास्ट मैम, हुआ? ठीक है। ठीक है ना, हाँ, फ्लो वाज ओके, मतलब या स्पीड वाज ओके। ओके मैम। किसी को पूछना है, सोचना है, क्या करना है? पूछेंगे तो आज का टॉपिक का ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट हो जाएगा, कम्युनिकेशन। हाँ, मैं फीडबैक ले रही हूँ, मैं पूछ या रही हूँ कि कैसा लगा, क्या है आपको जो, क्या है जो आपको अलग लगा, सब में आपको नहीं पता था, ऐसा कौन सा चीज है जो आज के सेशन में आपको नए से पता चला, ऐसा कुछ चीज है कि आपको सब मालूम था जो जो बताया वो? कोई तो बोलिए। ब्लॉकिंग बिहेवियर का नॉलेज अच्छा था वो। किसका? ब्लॉकिंग बिहेवियर। हाँ, ब्लॉकिंग बिहेवियर, हाँ, ओके। बाकी हम प्रैक्टिकली जितना काम करते हैं उसमें से थोड़ा सा नॉलेज आता है, बट
थेरेटिकली इतना मीन्स वो कैसे हम सीखते वो टाइम काम करते करते, लेकिन ये एकदम क्या बोलते हैं उसको लाइन में मीन्स बराबर एक एजुकेशन दिया है आपने। मीन्स जो हम प्रैक्टिकली पेशेंट के साथ जैसे बिहेव करते तो हम लोग वही सिखाते, बराबर। यस यस। तो उसमें वो नहीं था हमारे पास कम्युनिकेशन, तो वो ब्लॉकिंग बिहेवियर ऐड हो गया। ब्लॉकिंग बिहेवियर और बैरियर्स भी हैं जो हम सोच सकते हैं कि है क्या। तो इसके लिए जो मैंने आज बोला है उसमें से आप सोचो कि ये इसमें से क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हम जब नेक्स्ट टाइम बात करेंगे तब हम उसके बारे में बात कर सकते हैं। हम ऑलवेज बिजी रहते हैं तो हम ये सोचते हैं ना, ऐसे प्रैक्टिकली होता है कि ये क्या कटकट है इस पेशेंट का, ऐसे बार बार। यस तो अभी हमको रियलाइज होता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए उसको। यस वो एक सेंटेंस का उसके ऊपर क्या ये होता है, इम्पैक्ट होता है, वो समझ में आता है धीरे धीरे। यस यस यस। ये अवेयरनेस होना चाहिए कि हम क्या बात कर रहे हैं कैसे बात कर रहे हैं, उसका इम्पैक्ट पेशेंट पे आएगा। एंड पेशेंट कॉम्प्रोमाइज पोजीशन में है क्योंकि वो आपके पास आया है, वो आपको आपके पास से ट्रीटमेंट ले रहा है। तो दैट इज व्हाई वी डू नॉट हैव द राइट टू बिहेव इन अ अथॉरिटेरियन वे विद देम। हमको उनको अपने लेवल पे ही रिस्पेक्ट और ये करके उनके साथ काम करना है। डिफिकल्ट है क्योंकि मैं ऐसे नहीं बोलूंगी, पेशेंट्स आर वेरी डिफिकल्ट, रिलेटिव्स आर इवन मोर डिफिकल्ट। और जो उनके जो स्थिति है, जो इतना बड़ा इलनेस उनको होता है, या फैमिली को जो भी चेंजेस फैमिली लेवल पे होती हैं, एक आदमी या औरत इल हो जाए इसकी वजह से, और वो भी बहुत सीरियस इलनेस से, तो घर में भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं और उसकी वजह से भी पेशेंट और रिलेटिव अलग बिहेव करते हैं। पर ये सब ध्यान में हमको रखना है कि ये भी हो सकता है शायद वो अच्छे थे, शायद वो काम पेशेंट था, मतलब आदमी काम था, पर अभी इलनेस के तो डाउट जो है ना, वो हमको उनको देना है बेनिफिट ऑफ डाउट कि वो शायद इसकी वजह से कर रहा है। तो वो तकलीफें उनकी कम करेंगे तो शायद वो ठीक रिस्पॉन्ड करेगा हमसे। आप ड्यूटी स्टार्ट करते हैं वही टाइम सब पेशेंट, एक्चुअली हमारे पेशेंट रिपीट रिपीट सेम पेशेंट आते हैं, हाँ उनको सब मालूम होता है, फिर हाँ। उनको सब सिस्टर्स के नाम, उनका स्वभाव, ये कैसी है, ये सब मालूम होता है। तो हम्म बिहेव करते हैं तो अच्छे से ही करना है कैसा भी पेशेंट। हम्म। ये अगर यस। के ड्यूटी स्टार्ट किया तो इजी जाता है। गुड। और कोई क्वेश्चंस हो? नहीं तो फिर हम सेशन वाइंड अप करते हैं। थैंक यू मेरा मैम, हिंदी थैंक भी यू अच्छा हो रहा है आपका। सेशंस लेके। या Okay, thank you so much, ma'am, for joining. Thank you या all for joining. या। नाउ ऑन मंडे ना? Yeah. Yes, so advance International Nurses Day greetings to all. So we Oh. can Yeah. so we can see you on Monday with another Yes. session. Yeah, Yes. happy Nurses Day. या ओके चलो।